Hello everyone, I am Bhavna Singh. Welcome back to Insightonomics. So let's start the topic for today. Without a further ado, particular video, we are going to derive the decomposition of the price effect into substitution effect and income effect, and we are also going to find the compensating variation in income. Now we'll uh, derive an expression for the compensating variation in income. Okay, so there are two methods for it. First method is all about Hicksian method, and second method is based on the cost difference of the Slutsky. Okay, second compensating we'll denote it like del M. This represents the change in M as a result of change in prices. Okay, so that you can derive the expression for substitution effect. First one, I'll tell you with Slutsky. Okay, cost difference method. It is very easy to derive an expression for compensating variation in income. So, like compensating variation by definition it means the the amount of change in income that is required to keep the consumer to attain its original utility. Okay, keeping the price constant. मतलब इस तरीके से आपको इनकम में चेंज करना है जिससे कि जो कंज्यूमर है वो अपने ओरिजिनल यूटिलिटी इनिशियल यूटिलिटी पे पहुंच जाए. ओके, कीपिंग द प्राइस कांस्टेंट. So, based on the Slutsky's cost difference method, it is like change in income is equals to change in price into quantity demanded of that particular good. So, in our case, we are deriving this with respect to x. So, we'll say change in M with change in price into quantity demanded of x. Okay. And you are also getting an expression like this. If you do this, del px is equals to x. तो ये हम लोगों ने देखा ना इस टर्म्स में like del E, when you derive it with respect to x, you will get equals to x, right? So हमारा change in price क्या है? Change in price है 1, 2 minus 1. अर्लियर प्राइस हमारा क्या, ये कैसे होगा? px minus px dash into x. हमारा px 2 है, px dash 1 है, एंड हमारा x जो है 25 था. You will get 25. So the change in income will be 25. ओके, इसका मतलब ये है कि आपको जो इनकम थी उसमें 25 यूनिट्स जो भी इस तरीके से लाइक टेल एम इज इक्वल्स टू योर ओरिजिनल इनकम एंड द न्यू इनकम. तो आपको फाइंड करना है आपकी न्यू इनकम क्या रहेगी. इस न्यू इनकम पे जो आपका ओरिजिनल बंडल जो है वो अफोर्डेबल रहेगा. ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू 25. योर ओरिजिनल इनकम इज इक्वल्स टू this 100 and m dash हमें derive करना है. तो what you will get, m dash is equals to 100 minus 25 and you will get overall income as 75 m dash. So आपकी नई इनकम क्या होगी? 75. इसका मतलब ये है कि अर्लियर आप 25 यूनिट्स जो है, जब आपके प्राइस 2 था तो आप 25 यूनिट्स 100 रुपीज आपके ओवरऑल थे, तो उसमें आप 50 रुपीज जो है गुड एक्स को अलोकेट कर रहे थे. तो आपको जो है ओवरऑल जब 100 रुपीज में 25 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स एंड 12.5 यूनिट ऑफ गुड वाई जो है कंज्यूम कर रहे थे. नाउ आप
सेम यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो, लाइक 25 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स एंड 12.5 यूनिट्स ऑफ गुड वाई इन इन ₹75 ओनली। इसका रीजन क्या है कि प्राइस ऑफ एक्स कम हो गया है, प्राइस ऑफ एक्स सस्ता हो गया है, तो आप उतना यूनिट्स कम प्राइस में अफोर्ड कर सकते हो, कम इनकम में अफोर्ड कर सकते हो। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा इसका मीनिंग। एंड सो एट दिस न्यू प्राइस, जब हम लोगों ने देखा था ना, लाइक एक्स एट दिस न्यू इनकम एंड न्यू प्राइस, $75 1, what you will get is 35, I think, look, 37.5. So in this case, your XC, or you can say X3, is equals to 75. Sorry, 37.5. Based on the cost difference method. Okay, this is the cost difference method. So this del M represents the compensating variation in income. कि आपको अगर ओरिजिनल बंडल उतना ही अफोर्ड करना है बट प्राइस कम हो गए हैं, तो आप उतने सेम बंडल लाइक 25 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 12.5 यूनिट्स ऑफ वाई, सेम यूनिट्स कम इनकम में कंज्यूम कर सकते हो। तो आपको इनकम 25 यूनिट से कम कर देना है क्योंकि आपकी प्राइस कम हो गया है। ओके, दिस इज द कॉम्पेंसेटिंग चेंज in your income. Okay, based on this cost difference method. This is the method of Slutsky, and this is a very simple method. You have to use this particular formula to derive it, to find the change in income. Okay, now we'll look for the Hicksian method. So Hicks ये बोलते हैं कि अगर आपको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डिराइव करना है, तो जैसे अगर प्राइस कम हुए तो प्राइस कम होने की वजह से आपकी परचेसिंग पावर बढ़ गई है, बट आपको ओरिजिनल बंडल अफोर्ड करना है, आपको इनिशियल जो भी यूटिलिटी है उस पर ही रहना है। जस्ट एज यू नो अलोंग एन इंडिफरेंस कर्व, आपका क्या डिफरेंट बंडल्स रहते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई, दैट विल गिव यू द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी। तो हिक्स बोलते हैं कि आपको सेम जो ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व था आपको उस पे ही रहना है, बट योर कॉम्बिनेशन माइट चेंज बिटवीन एक्स एंड वाई। ओके, तो आपको इनकम को इस तरीके से कॉम्पनसेट करना है कि कंज्यूमर अपने ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व पे पहुंच जाए, but at a new combination of good x and good y. Okay, and this particular difference between the original x star and the new x star is represented by substitution effect. Okay, तो यहाँ पे हम लोग को पहले देखना कि हमारी ओरिजिनल यूटिलिटी क्या रहने वाली है। तो जैसे हमारे पास इस तरीके का यूटिलिटी फंक्शन गिवन है, x हाफ एंड y हाफ, हम लोगों ने बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं इस पर। तो इस केस में हमें v बार इस तरीके से आता है, m/2 px हाफ एंड py हाफ। तो पहले हमें ये देखना है कि जब हमारे प्राइस में चेंज नहीं हुआ है तब हमारी यूटिलिटी क्या है। सो हम पुट करेंगे वैल्यूज को, टू प्राइस ऑफ एक्स 2 हाफ 4 हाफ। ओके, and I think we have derived an expression for this. 50, sorry, 50. Here what you will get, it's 1.41 into 2, because 4 का अंडर रूट 2 होता है, and when you solve this 25 divided by 1.41, you will get 17.73. This is our V, or the maximum utility that you can attain.
ओके। अब आपको क्या करना है, इवन आपका प्राइस चेंज भी हो जाता है उसके बाद भी आपको आपकी इनकम में इस तरीके से एडजस्टमेंट करना है कि आपको ये सेम यूटिलिटी मिले। ओके। क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं, बेस्ड ऑन द assumption ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस मोर इज बेटर। प्राइस कम हुए, आप ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, आपको ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है, आप हायर इंडिफरेंस कर पे मूव कर जाओगे। पर आपको ओरिजिनल यूटिलिटी कांस्टेंट रखनी है, मेंटेन रखनी है, प्राइस चेंज हो गया है तो आप किस में एडजस्टमेंट कर सकते हो, ओनली इन योर इनकम टू कीप योर यूटिलिटी कांस्टेंट, राइट। हम लोग इसको ग्राफिकली भी देखेंगे अभी। तो आपको क्या करना है, आपकी ओरिजिनल यूटिलिटी and the new utility must be equals to each other. Okay. Utility before price change, utility after price change. So this is equals to 7.73, and here you have to derive new M and at an original price. So your price is 1. This is again 4. इसमें कोई change नहीं आया है. So 2 into 2, 17.73. So M dash is equals to 17.73 into 4. The new price okay. So this is your M dash, new income. So compensating variation in income is equals to M minus M dash. Okay. ओरिजिनल इनकम ये थी, न्यू इनकम है ये, तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे you will get 29.08. So this del M represents the compensating variation in income based on the Hixian method. Okay. तो आप लोगों को लग रहा है ये दो अलग अलग मेथड है, एंड इन दोनों ही अलग अलग मेथड में आपको डेल एम अलग अलग आया है, एंड बेस्ड ऑन दिस डेल एम दिस चेंज इन कॉम्पनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डिटरमाइन होता है। तो जो एक एप्लीकेशन आप थियोरी में पढ़ते होगे कि द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ स्लस्की इन केस ऑफ प्राइस फॉल, write it like this. Slusky's substitution effect in case of price fall is higher than Hixian substitution effect in case of price fall. Okay, and vice versa. Like this. हम लोग ये सेम यही रहेगा, साइन चेंज हो जाएगा इन केस ऑफ प्राइस राइज। ये एप्लीकेशन है, लाइक इस टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं, आपको जो वन वर्ड में कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आपको न्यूमेरिकल से एप्लीकेशंस भी याद रखना है। तो in case of price rise, Lusky substitution effect is lesser than the Hixian substitution effect. अब मैं आपको न्यूमेरिकल से बताती हूँ ये कैसे है। इन केस ऑफ एक्स हमारी इनकम में कितने यूनिट से चेंज आ रहा है, 29.08। ओके, एंड बेस्ड ऑन स्लस्कीज मेथड हमारे इनकम में कितने यूनिट से चेंज आ रहा है, 25 यूनिट से। ओके, स्लस्की वाले केस में हमारी नई इनकम कितनी है, 75। वाइल इन केस ऑफ एक्स हमारा जो नया इनकम आया है वो क्या है, 70.92. Okay, and if you derive the expression for substitution effect in case of Slusky and in case of X, so we will derive it numerically, we'll prove it. We have this function, so at new income and new price. Okay, first based on Slusky, so आपकी नई इनकम है एज पर द Slusky 75 एंड आपका प्राइस तो 1 ही है,
and what you will get 37.5. Okay, and now based on hex, आपकी इनकम है 17.92, प्राइस सेम है, so let's you will get 35.46. अब सब्सटीट्यूशन इफेक्ट किस तरीके से निकालते हैं? सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? आपका ओरिजिनल बंडल माइनस न्यू बंडल, so we'll denote it like this with C. Okay, substitution effect C. So difference between X and XC, your X is 25 and your XC is, in case of Slusky, it's 37.5. You will get something. Oh, what will be that? Just wait. I have to use the calculator. मैथ वीक है थोड़ा मेरा, इसलिए get 12.5. Okay, this is the substitution effect in case of Slusky. Slusky, I'll write it. In case of hex, it will be again XC. Original bundle is same in both the case. There is a difference in case of substitution effect. Okay, so you have 35.46. So you will get negative, because the negative sign denotes the inverse relation. (10.46). तो इसको मैं S से डिनोट कर रही हूँ, इसको H से. So हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी प्रूव कर लिया that SE in case of Slusky is greater than SE in case of Higgs. S ये माइनस में है. Minus 12.5 is higher than the minus 10.46. So this is an application of the theory that we go through. The Slasky substitution effect is higher than the Higgsian substitution effect in case of price fall. Okay. And in case of price rise, ये उल्टा हो जाएगा. Okay. And हम लोगों ने क्या देखते हैं, हम लोगों ने हमारे एक्सप्रेशन ड्राइव हुए या नहीं. तो yeah, finally we have done this, and now let me explain it using graph as well. So let me draw. I am putting these values on the graph. Okay. So suppose you have this original income earlier. Now as a result of the fall in the price of X, आपकी, look, let me use different color. आपकी budget line rotate की further. Okay. So movement, earlier you are having equilibrium at this point. Okay, let me use. Okay, earlier you are having, let's say, earlier you are having equilibrium at this point A. Okay, where you are consuming, this is your budget line A, B. We are considering first situation जब आपका प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है. ठीक है. And you are consuming this much of Y and this much of X. Okay. So your here your Y is equals to 12.5. This is your Y1, you can say, and here this is your X1, and this is equals to 25 when your income is 100 and price of X is 2.
and price of y is 4. Okay, you are having equilibrium at this point. अभी क्या हुआ, आपका प्राइस चेंज हुआ, प्राइस फॉल हुआ फ्रॉम 2 to 1. इसकी वजह से क्या हुआ, आपकी बजट लाइन रोटेट की आउटवर्ड्स और ये फ्लैट होगी. ओके, बिकॉज एट दिस पॉइंट लाइक दिस इज द पॉइंट ऑफ m by px. आपकी इनकम थी 100 रुपए, आपके प्राइस थे 2 रुपए, आप ये था 50. यहाँ पे क्या हुआ, आपकी रियल इनकम बढ़ गई क्योंकि प्राइस फॉल हुए. 100 प्राइस हो गया 1, तो आपकी रियल इनकम हो गई 100. ओके, सो एट दिस पॉइंट आपकी इनकम, रियल इनकम थी 50. एट दिस पॉइंट एट बी डैश आपकी रियल इनकम हो गई 100. तो आप ज्यादा कंज्यूम कर सकते हो गुड एक्स, इसलिए आपकी जो है बजट लाइन रोटेट की है. ओके, नाउ विल सी कि आपका प्राइस कम हुआ, प्राइस कम होने की वजह से आप सेम इनकम में लाइक 100 रुपीज में अब आप ज्यादा गुड एक्स और ज्यादा गुड वाई ओवरऑल कंज्यूम कर सकते हो. ओके, so you will get let me use this color. Suppose you will get an equilibrium. What is, okay, uh, this is your IC1. Here you having VVAR utility, and this is your IC2. Here you having VVAR 2. So IC2 or VVAR is higher than IC1. This VVAR, because by consuming more you will get more satisfaction and you will be at a higher indifference curve. Okay, suppose this is a point B. Okay, क्योंकि वी हैव दिस फंक्शन फॉर m by 2py. आपके प्राइस में भी कोई चेंज नहीं आया, प्राइस ऑफ y में भी इनकम में कोई चेंज नहीं आया, तो बिफोर द प्राइस चेंज एंड आफ्टर द प्राइस चेंज ऑफ गुड एक्स आपकी y एज इट इज ही रहेगी. ओके, सो आई विल यूज अ डिफरेंट कलर फॉर दिस. सो आपका क्या हुआ, आप यहाँ पहुंचे, आप y उतना ही यूनिट्स ही कंज्यूम कर रहे हो 12.5, बट क्योंकि प्राइस ऑफ एक्स फॉल हुए, प्राइस गुड एक्स सस्ता हो गया, आप गुड वाई अब ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो. दिस मूवमेंट टू x2 कितना था आपका 50. तो आप 25 से 50 पहुंचे. दिस ओवरऑल इफेक्ट कम्स अंडर प्राइस इफेक्ट. ओके, अभी आपको डिकम्पोज करना है दिस प्राइस इफेक्ट इनटू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. तो डिकम्पोजिशन ऑफ प्राइस इफेक्ट इनटू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इसके दो मेथड्स हैं. एक स्लस्की ने दिया था जो कि कॉस्ट डिफरेंस मेथड था, एक दिया था हिक्स ने. ओके, एंड दैट इज यहाँ पे बस थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम, कि आपको इनकम किस तरीके से चेंज करना है. ओके, तो हिक्स ने बोला था कि आपको इनकम इतना कम कर देना है कि जो कंज्यूमर है वो अपनी ओरिजिनल यूटिलिटी पे पहुंच जाए. ओके, बंडल कैन बी डिफरेंट, जिससे कि वो वी वार यूटिलिटी अटेन कर पाए, उसको आपकी इनकम इतने अमाउंट से चेंज करना है. क्योंकि प्राइस फॉल हुए हैं, इनकम बढ़ गई है, तो आपको अपनी जो रियल इनकम कांस्टेंट रखना है, खुद को कम कर देना है. मनी इनकम कैन चेंज बट रियल इनकम मस्ट रिमेन कांस्टेंट. ओके, तो इससे क्या होगा, आपका शिफ्ट लगेगा. आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर, जैसे ब्लैक. ओके, आपका शिफ्ट लगेगा दिस ए बी डैश. सो फर्स्ट लेट मी क्लियर इट यूजिंग हिक्सन डिमांड फंक्शन. So at this new budget line is tangent to indifference curve at this point. Okay, that means आपका V bar is equals to this. ये बजट लाइन जो है CD कॉम्पनसेटेड बजट लाइन है. एंड यहाँ पे आपकी इनकम कितनी है, बेस्ड ऑन हिक्स 17.92. ओके, तो अब सेम दिस 17.92 इनकम में आप कितना कंज्यूम कर सकते हो, आपको ये देखना है. आपकी यूटिलिटी सेम रहेगी, आप प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन बढ़ा दोगे. सो लेट्स से दिस इज अ पॉइंट सी. सो at this point C, because of the substitution effect, and as we know substitution effect is always negative, and we are looking at the change in x due to change in relative prices.
तो क्योंकि गुड एक्स सस्ता हुआ तो गुड एक्स की डिमांड बढ़ेगी एंड गुड वाई की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि वो रिलेटिवली महंगा है। ओके, तो वाई चेंज होगा आपका यहाँ पे, वाई टू, एंड आपकी एक्स थ्री, विल कॉल इट एक्स थ्री और एक्स सी। So this movement from xc x1 to x3 is represented by substitution effect, and the remaining movement from xc to x2 is explained by your income effect. तो हम लोग को जैसे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मिलता है, तो बिकॉज दिस CD इज एन इमेजिनरी बजट लाइन, जस्ट टू डिराइव एन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। रियल में हम लोग ना कंज्यूमर से इनकम ले रहे हैं ना उसको दे रहे हैं, यहाँ पे ये इट इज ऑल अबाउट इन इमेजिनेशन, सो दैट वील गेट द डिकम्पोजिशन ऑफ प्राइस इफेक्ट, ओके, इनटू सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट। तो हम लोग अगेन उसकी इनकम जितना भी हम लोग ने इमेजिनरी लाइन बनाई थी उसको हटा देंगे। सो द डिफरेंस बिटवीन दिस एक्स सी और थ्री एंड x2 इज रिप्रेजेंटेड बाय इनकम इफेक्ट। सो इन केस ऑफ हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कितना आया था, दिस इज 10.46, ओके। एंड जब भी हम इसका डिफरेंस 25 में से इसको माइनस करेंगे, वील गेट दिस इनकम इफेक्ट, ओके। But let me clear this using cost difference method as well. Again, same thing. I will not repeat this again. Okay, so this is your IC1, this is your IC2 and this is your IC3. ये आपकी ओरिजिनल बजट लाइन है रेड वाली, ये आपकी रोटेटेड बजट लाइन है इनकम प्राइस चेंज होने की वजह से, एंड CD आपकी कॉम्पनसेटेड जो है बजट लाइन है, ओके। सो अर्लियर आप इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे थे, इनकम बढ़ने की वजह से आप इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए, ओके। एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डिराइव करने के लिए हम लोगों ने इमेजिनरी कॉम्पनसेटेड डिमांड बनाया एंड बेस्ड ऑन स्लस्की। तो स्लस्की के केस में आपको इनकम उतना कम करना होता है जिससे कि आपके जो ओरिजिनल बंडल जो है वो दे बिकम जस्ट अफोर्डेबल, मतलब एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट जब आप इनकम कम करोगे तो आपकी टोटल जो इनकम है वो एग्जॉस्ट होनी चाहिए, ओके। सो बेस्ड ऑन अ स्लस्की दिस चेंज इन इनकम, दिस डेल एम is equals to 25, right? And we'll reach to this point for C. तो स्लस्के के केस में वो ये बोलते हैं कि इवन इफ आप कंज्यूमर की इनकम को कॉम्पेंसेट भी कर दो, स्टिल यू विल रीच ऑन अ हायर इंडिफरेंस कर्व रादर देन रिमेनिंग ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व। बिकॉज हिक्स वाले केस में क्या था, कंज्यूमर एक ही इंडिफरेंस कर्व पे रहता है, द सेम इंडिफरेंस कर्व, जिसकी यूटिलिटी में कोई चेंज नहीं आता, ओनली द कॉम्बिनेशन विल चेंज फॉर गुड एक्स एंड गुड वाई। बस प्लस की बोलते हैं कि नहीं, अगर प्राइस चेंज होते हैं एंड आप कॉम्पनसेट करते हो कंज्यूमर को तो वो हायर इंडिफरेंस कर्व पे पहुंचता है, उसको हायर यूटिलिटी मिलती है, ओके। to put it here, okay. So this is the point of tangency between the new compensated budget line and indifference curve. This is IC3 and C, okay, like this. So this is your X1, this is your XC or you can say X3, this is your X2. So movement from X1 to X3 is your substitution effect and this is your income effect. So in case of substitution, if Slutsky's substitution effect,
आपको कितना सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मिलता है? 12.5। ओके, एंड इसका रिमेनिंग जो रहेगा, इधर 25 था, ये 37.5 था, ये था 50 इन केस ऑफ स्लस्की, राइट? हियर यू हैव गुड एक्स, गुड वाई एंड गुड एक्स। ओके, अगर इसे वाई के टर्म्स में भी तो हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। जस्ट वेट, दिस इज योर ओरिजिनल वंडर, दिस इज योर न्यू वंडर। यहाँ पे इसको डायग्राम बनाने में कंफ्यूजन हो जाता है, गलती हो जाती है। So this is at point B. Okay. At new budget line. So in a overall total price effect, आपका Y as it is ही रहेगा 12.5. But as a result of substitution effect, आपका Y कम हो जाएगा क्योंकि substitution effect is always negative. आप इतना in case of Slusky, you will represent this whole numerical value in this way. Okay. But in case of fix, you will represent all this value in this way, where you will the consumer will remain on the same indifference curve. Okay. But in this case, the consumer will become more better than before, and that he will or she will reach on the higher indifference curve, that is IC, because this IC1, IC2 is higher than IC1. Okay, so I hope आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा।